کہ موتی محل کی طرف جانے سے پہلے جلال سے وہ گفتگو سن رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی بدلتی ہوئی صورت احوال واضح ہو گئی تھی۔ میں نے روانگی کی تیاری کرتے ہوئے بھیم گن کو اپنے کوٹ کے نیچے پتلون کی بیلٹ میں چھپایا تو غزالہ بولی، انگوٹھی تک ٹھیک ہے، آپ بھیم گن نہ لے جائیں تو بہتر رہے گا۔ کسی مرحلے پر آپ اضطراری طور پر اسے استعمال کر بیٹھے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ میں نرمی سے اس کا رخسار تپا کے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں وہاں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، پستول وغیرہ کے مقابلے میں بھیم گن بہتر رہے گی۔ غزالہ سے رخصت ہو کر میں لفٹ کے ذریعے ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر پہنچا تو میری نگاہیں تیزی سے گرد و پیش کا طواف کر رہی تھی۔ میں لفٹ سے نکل کر مشکل سے 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ اچانک میری نظریں ہوٹل کے صدر دروازے سے آتے ہوئے چاؤفان پر پڑی۔ اس کا کسی اطلاع کے بغیر اچانک نازل ہونا مجھے بہت کرا گزرتا تھا۔ اس وقت میں ویسے بھی موتی محل پہنچنے کی عجلت میں تھا۔ میں نے چاہا کہ پھرتی سے اپنا رخ پلٹ کر اپنی پیٹھ اس کی طرف پھیر لوں اور انجان بن کر ہوٹل کے کسی اور راستے سے باہر نکل جاؤں، مگر مجھے لمحہ بھر کی تاخیر ہوگی۔ اس خبیث نے میری دراز قامت کی وجہ سے دور ہی سے مجھے دیکھ کر فضا میں ہاتھ لہرایا اور تیر کی طرح میری طرف آیا۔ ماسٹر، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں؟ اس نے میرے قریب آ کر مسرت آمیز حیرت سے کہا۔ میں تمہارے استقبال کے لیے نیچے نہیں اترا، میں نے خفا ہو کر کہا، ایک ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوں، تم بلائے بے درما کی طرح یہاں کیوں آئے ہو؟ ماسٹر، کیوں مجھ بیچارے پر ناراض ہو رہے ہو؟ وہ نرمی سے میرا بازو تھام کر مجھے راہداری کے ایک دیو ہیکل ستون کی طرح لے جاتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ، میں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تم یہاں بیٹھ کر کافی کا 1 کپ پیو، میں تمہارا کام کر کے لوٹ آؤں گا۔ اس کا لہجہ اس قدر عاجزانہ تھا کہ میں بے بسی سے مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہو تو میری بجائے تم کھانا نہیں کھا سکتے، میں نے ذرا سختی سے کہا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجھے خود کھانا کھانا پڑے گا، اس کام کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ اس وقت تک ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے اس گول اور آراستہ ستون تک پہنچ چکے تھے جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ماسٹر، تم بہت مبارک آدمی ہو، وہ دھیمے اور عقیدت مندانہ لہجے میں بولا۔ صبح تم سے رخصت ہو کر میں مادام کی طرف گیا تھا اور اب سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ وہ بہت اچھے اور کلنٹر موڈ میں تھی، آج میں نے اسے فتح کر لیا، اسی لیے تمہارا رواں رواں الکوہل کی تیز بو سے مہک رہا ہے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ تم کو اس حالت میں یہاں آتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ میری لتاڑ سن کر اس کا چہرہ لٹک گیا اور وہ مغموم آواز میں بولا، میرا خیال تھا کہ تم میری کامیابی کی خبر سن کر خوش ہو جاؤ گے، تم ناراض ہو رہے ہو؟ تمہاری بے شرمی پر اپنا سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ آدمی اپنی ایسی حرکتوں کو دوسروں سے چھپاتا ہے، ان کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ تم نے اپنا پیٹ ہلکا کر لیا، اب یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ جاؤ تاکہ میں اپنا کام کر سکوں، تم بگڑ جاؤ تو تمہیں بنانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سر جھکا کر مغموم لہجے میں بولا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے سیخ پر بھنے ہوئے چوہوں کے ساتھ خوب پیاز کھا لی تھی تاکہ تمہیں کوئی بو نہ آئے، مگر تم سے کوئی بات چھپانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، تم سب کچھ سونگ لیتے ہو۔ یقین کرو کہ میں نشے میں نہیں ہوں، املی اور آلو بخارے کے تیز شربت نے ذہن بالکل صاف کر دیا ہے۔ اس کی زبان سے سیخ پر بھنے ہوئے چوہوں کا ذکر سن کر مجھے کراہت سے متلی ہونے لگی۔ ان لوگوں کی خوراک ان سے زیادہ عجیب تھی، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ الا بلا کھا کر زندہ کیسے رہتے ہیں۔ چاؤفان، میں تم سے ذرا بھی ناراض نہیں ہوں، میں نے اندر ہی اندر پیچو تاب کھاتے ہوئے الفاظ چبا چبا کر کہا۔ تم بلا وجہ مجھے منانے کی کوشش نہ کرو، میں جا رہا ہوں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے درمیان میں بولا۔ تم دوسری خبر بھی سن لو، چھوٹا راجن کے 5 ساتھی اور حمایتی یہاں سے واپس جا چکے ہیں۔ تم لے کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے تو تمہیں یہ خبر کہاں سے مل گئی؟ میرے متحیر ہونے کے باوجود میرے لہجے میں ترشی غالب رہی، میری حیرت اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ میرے موڈ کی تبدیلی محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے انصار بولا، ماسٹر، عورت اپنی پسند کی ہو تو اس کے بدن کا رواں رواں بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مگر یہ بات مجھے مادام نے نہیں، میرے آدمی نے موبائل فون پر بتائی تھی۔ سب سے آخر میں لالا کریم اور حاجی مستان ایک ساتھ ہانگ کانگ گئے ہیں۔ وہ لی کے خمار سے نکل کر کام کی باتوں کی طرف آ گیا تھا۔ میں نے اس پر اپنی معلومات کا اظہار کیے بغیر پوچھا، اس کے آدمیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب وہ موتی محل میں تنہا رہ گیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اس نے سر ہلا کر پر یقین لہجے میں کہا۔ بڑی ہڈی ہاتھ لگ جائے تو بعض کتے اسے آخر تک جھنجھوڑتے رہتے ہیں، مقامیوں نے اسے بغاوت کر دی ہے، اس کے کچھ ہم وطن اب بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ موقع بہترین نہیں ہے؟ اس وقت موتی محل پر دھاوا بول کر اسے مارا جا سکتا ہے، میں نے اسے اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اپنے گھر میں چیونٹی بھی شیر ہوتی ہے، موتی محل ایک بھول بھلیا ہے، پاس نکلنے کے کئی پوشیدہ راستے ہوں گے، وہ کہیں سے بھی نکل جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس قدر چالاک اور مکار ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے تمہیں چل دے کر صاف نکل گیا تھا۔ پھر ڈان کیا کہتا ہے؟ میرے سرگوشانہ لہجے میں کہا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا وہ موٹوں کے ذریعے کر چکا، اب چھوٹا راجن تمہارا شکار ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ تم کو کرنا ہے، میں ہر طرح تیار ہوں، اسے سعادت مندانہ لہجے میں جواب دیا۔
अपने नाम नहाद फतेह के शहर से आज़ाद होकर वो माकूलियत के राह पर आ चुका था। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने जेब से ऑपरेटर निकाल कर स्क्रीन पर निगाह डाली तो वहाँ मोती महल का नंबर मौजूद था। चाउफान ने उचक कर वो नंबर देखना चाहा, लेकिन मैंने इसी वक्त फ़ोन अपने कान से लगा लिया। मैं चाउफान की मौजूदगी में भी बेखौफ होकर राजन से बात कर सकता था। मेरे और उसके दरमियान गुफ्तगू उर्दू में होती थी। चाउफान हमारी जुबान का एक लफ्ज़ भी नहीं जानता था। इसकी सारी जुबान दानी मकामी बोलियों और लंगड़ी लूली अंग्रेजी तक महदूद थी। तुम कहाँ हो? मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे कान में गूंजने वाली राजन की आवाज़ से जाहिर हो रहा था कि वो अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। दोपहर के खाने में एक थाई रेस्टोरेंट वाले ने न जाने क्या खिला दिया कि मेरा मैदा चौपट होकर रह गया। मैंने अपने जहन में आने वाला पहला उज़र बयान करते हुए कहा, जैसे ही बाथरूम की परेड से फुर्सत मिलती है मैं आता हूँ। क्या तुम्हारे बाथरूम में और लोग भी मौजूद हैं? काफ़ी मिली जुली आवाज़ें आ रही हैं। उसकी आवाज़ काटदार और तंजिया होगी। मैं बौखला गया। इससे बात करते हुए मैंने ये नुक्ता फरामोश कर दिया था कि मैं इस वक्त होटल के लॉबी के एक हिस्से में खड़ा था और हमारे आसपास से बहुत से लोग हंसते हुए बोलते हुए गुजर रहे थे। इस वक्त मैं दवा लेने के लिए बाजार में निकला हुआ हूँ। मैंने बात बनाने की कोशिश करते हुए कहा, कहो तो घर पहुंचकर तुमसे बात कर लूँ। मैंने उसके तंज को नजरअंदाज कर दिया। किसी बातचीत की जरूरत नहीं, बस जल्दी पहुंचो। मोती महल में 20 बाथरूम है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि ये खाने की गड़बड़ नहीं है, यहाँ आने के खौफ से तुम्हारा हाजमा बिगड़ गया है। आओगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ। उसे दिलासा देकर मैंने फोन बंद कर दिया। फोन पर मेरी गुफ्तगू के दौरान में चाउफान दोनों हाथ सीने पर बांध कर खामोशी से मेरा चेहरा तकता रहा था। बात खत्म होने के बाद उसने सरसरी अंदाज में पूछा, कौन था? मेरा एक दोस्त था। उसे टालने के लिए मैंने कहा, वही तो नहीं जो तुम्हारे लिए जासूसी करता रहता है? चाउफान की चर्ब जुबानी का सिलसिला शुरू हो गया। वो नहीं था, मैंने चटक कर कहा। तुम्हारे बाद में अपनी टांग क्यों उड़ाते हो? दुरानी गुफ्तगू तुमने एक मरतबा थाई रेस्टोरेंट के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसने मुझसे सूरत बना के कहा। मैंने सोचा कि डिनर का प्रोग्राम बन रहा हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। शागान यहाँ के एक छोटा लेकिन बहुत उम्दा रेस्टोरेंट है। सांप के तले हुए कत्लों से मगरमच्छ के सालन तक सब डिशें बहुत लजीज होती हैं। बुने हुए चूहों के बाद वो हद से तजावुज कर रहा था। मैंने मुसाफिर के लिए दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी आमद और मालूमात की फराहमी का शुक्रिया। मैं दुआ करूंगा कि ली तुम्हें हमेशा अपने तलवे चाटने का मौका फराहम करती रहे। अब मैं चलता हूँ। मास्टर, तुम इतनी मजेदार बातें करते हो कि तुमसे मिलकर मेरा दिल खुश हो जाता है। उसने पुरजोश अंदाज में मेरे हाथ को झटके देते हुए कहा, इस वक्त जाने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन खैर तुम्हारी मजबूरी है। अब मैं फोन करके आऊंगा। मेरा हाथ छोड़कर वो मुड़ा और सदर दरवाजे की तरफ फूल गया। मैं चंद सानियों तक अपनी जगह पर खड़ा उसे चाहते हुए देखता रहा, फिर मुड़कर होटल के शॉपिंग आर्केड की तरफ चल दिया, जहां से एक रास्ता होटल की दूसरी समत में निकलता था। बैंकॉक में टुक टुक और टैक्सियों के बहुत हाथ है। आमतौर पर कदम कदम पर सवारी मिल जाती है। मैंने कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद एक टैक्सी ली और प्राय रास्त मोती महल के लिए रवाना हो गया। टैक्सी के अगली निश्चित पर बैठने के बाद मुझे बीमगन की फिक्र लाहक हो गई। पतलून की बेल्ट में वो गैर महफूज थी। प्लास्टिक का वो जदीद हथियार वजनी होने के बावजूद किसी पिस्तौल वगैरह से काफी छोटा और हल्का था। इसे छुपाने के लिए वही जगह ज्यादा महफूज थी जिसका जिक्र मैंने गजाला से किया था। टैक्सी का ड्राइवर अधेड़ उम्र और सुस्तुल वजूद सा था। फिर भी मैंने भीमगन को बहुत एहतियात से कोट के दामन की आड़ में छुपाकर अपनी निशित से निकाला और कमीज के निचले बटनों के दरमियान से गुजार कर अंडरवेयर के ऊपरी हिस्से में पेट से चिपका लिया। यूं तो भरपूर जामा तलाशी में बदन का कोई हिस्सा महफूज नहीं रह सकता था, लेकिन किसी सरसरी कोशिश में वो मकाम बचा रहने की उम्मीद थी। मैं असद के साथ पहली बार मोती महल पहुंचा था तो वहां हमारी मुकम्मल और भरपूर जामा तलाशी ली गई थी। सुबह मैं राजन के मेहमानों के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया तो मेरी तलाशी का अंदाज सरसरी सा था। तवक्का थी कि मोती महल पर राज करने वाले सन्नाटे में तीसरी बार मुझे ज्यादा कड़ी निगरानी से या तलाशी से गुजरना नहीं पड़ेगा और भीमगन बच जाएगी। शाम हो चली थी और शहर में रोशनियां जल उठी थी। मैंने मोती महल के आसार नजर आने पर एक दमकते हुए बिलबोर्ड के साए में टैक्सी रुकवा ली ताकि इस इमारत के फाटक पर लगे हुए कैमरों की गिरफ्त से दूर रहकर भीमगन की पोजीशन का सही अंदाजा कर सकूं। टैक्सी से उतरने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छे जेर जामे महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इनकी आफादियत हमा जहत होती है। भीमगन मेरे जिस्म से यूं चिपकी हुई थी जैसे जरा सी देर में जुज़्व बदन बन गई हो। मैं ड्राइवर को फारिग करके इत्मीनान से मोती महल की तरफ चल दिया। शाम के धुंधलके में इस इमारत में बहुत सी रोशनियां चमक रही थी, लेकिन चिरागा का वो मंजर मफकूद था जो मैं पहले देख चुका था। वो मोती महल के रहे सह मकीनों के लिए एक शाम गम थी। वहां घूर अंधेरे का राज होता तो वो भी कम था।
पुरशकू और देव हैकल फौलादी दरवाजे के सामने रुककर मैंने किसी मजलूम फरियादी की तरह दस्तक दी। मुझे कैमरे की मदद से अंदर देख लिया गया था। फाटक के बराबर में दीवार में बने हुए पतले से रास्ते पर एक शख्स नमूदार हुआ। उसने मकामी जुबान में कुछ कहा जो मेरी समझ से बाला था। उसका लहजा से जाहिर हो रहा था कि वो मकामी नहीं था। राजन की कही हुई ये बात मेरे जहन में अटकी हुई थी कि उसके साथ सिर्फ 4 भारतीय रह गए थे, बाकी आदमी हथियारों समेत फरार हो चुके थे। मेरा नाम अकबर है। मैंने आने वाले की तरफ मुतवज्जा होकर बोलना शुरू किया था कि उसने उजलत में मेरी बात काट दी। इधर से अंदर आ जाओ। इस तंग रास्ते में मुझे जगह देने के लिए वो अंदर से रख गया। वो रास्ता मैं सुबह के जागुसल फरार में दरियाफ्त कर चुका था। वहां से एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। मोतीमहल के हदूद में कदम रखते ही अंदाजा हो गया कि वहां उदासी ने टेरे डाले हुए थे। हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। जो लोग रह गए थे उन्होंने अहाते की सारी बत्तियां रोशन करने की जरूरत महसूस नहीं की, या फिर सुबह अहाते में गिरने वाले बम्बों ने बिजली की तरसील के जेर जमीन निजाम को तबाह कर दिया था। मुझे अंदाजा था कि मोती महल में कदम रखने के बाद मुझे अपनी मर्जी से वक्त के इस्तेमाल की आज़ादी नहीं रहेगी। इसलिए मैं तेजी से हर तरफ का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। मुसल्ला मुहाफिज की माहियत में मैं गार्ड रूम के सामने पहुंचा तो उसने मेरे बाजुओं और पहलुओं पर हाथ फेर कर चामा तलाशी ली, फिर झुककर मेरी दोनों पिंडलियों पर ऊपर तक हाथ फेरे और मुतमईन होकर सीधा खड़ा हो गया। मेरा पेट उसकी तवज्जो से यकसर महरूम रहा। बास बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा है, उसने बदमाशों जैसे मखसूस लहजे में कहा। जल्दी से दौड़कर अंदर जा, बरामदे से कोई अंदर ले जाएगा। मैं कुछ कहे बगैर बरामदे की तरफ बढ़ गया। इधर जाते हुए मैंने देखा कि सामने फेंके जाने वाले बम्बों ने अहाते के बड़े हिस्से को खंडर में तब्दील कर दिया था। मुझे दूर ही से नजर आ रहा था कि बरामदे में एक दुबला पतला और दराज का शख्स नमूदार हो चुका था। मेरा अगला रहनुमा वही हो सकता था। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। दूर रहकर मुझे अपना मिशन जितना आसान नजर आ रहा था, मोती महल में आने के बाद इतना आसान नहीं रहा था। वो गिनती के 5 नफूस थे, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर फैलकर उन्होंने अपनी ताकत में काफी इजाफा कर लिया था। मिली राजन को मौत के घाट उतारना शायद ज्यादा मुश्किल ना होता, लेकिन बाद में मोती महल से निकलने में वाज़ेह दुश्वारियां नजर आने लगी थी। जलाल की हदायत मेरे जहन में बैठी हुई थी। मेरे हाथों मरने वाले का यह हक था कि इन्हें आखिरी सांस लेने से पहले अपने कातिल का नाम मालूम हो जाए, लेकिन इनके सिवा किसी को मेरी असलियत की सुन नहीं मिलनी चाहिए थी। भीमगन का इस्तेमाल भी नाम के इजहार के जुमरे में आता था, मगर बदतरीन लम्हात में वही मेरा आखिरी हथियार साबित होती। जब तक मैं बाहर था मुझे भीमगन अंदर लाने की फिक्र लाहक थी। इस चक्कर में मैंने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां वो मोती महल के दरबान से महफूज रही। इसी के साथ वो मेरी दस्तरस से भी दूर हो चुकी थी। कोई नागहानी जरूरत पेश आ जाती तो उसे जेरजामे से निकालना मुहाल हो जाता। तलाशी का मरहला गुजर चुका था। दूसरी तलाशी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। मसला यह था कि भीमगन को मेरी जेब में आ जाना चाहिए था, जहां वो बवक्ते जरूरत आसानी से हाथ आ जाती। अबे दौड़ लगा, बरामदे वाला अपनी जगह से हो रहा है, अब्बास तेरा इंतजार कर रहा है। इन लोगों में शाइस्तगी नाम को नहीं थी। इनकी तू तड़ाक से जाहिर हो रहा था कि वो दंगा फसाद करने वाले तीसरे दर्जे के बदमाश थे जो राजन की जान से चिमटे रह गए थे। इसके मजीद किसी बदतमीजी से बचने के लिए मैंने धीमी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद, पहले मुझे बाथरूम का रास्ता बता दो, मेरा पेट गड़बड़ है। मैंने उसके करीब पहुंचते ही अपना पेट दोनों हाथों से थाम कर आजिज़ी से कहा। बास के पास जाने से पहले पेट खराब हो गया, इससे मिलेगा तो सारा पतलून गंदी कर लेगा। तजही कमेज अंदाज में तबसरा करके उसने फिल्मी अंदाज में कहका लगाया और बोला, मेरे पीछे आ जा। इस बार हम ड्राइंग रूम के बजाय एक राहदारी में दाखिल हुए। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि साउंड प्रूफ कमरा किधर वाक़ था। 2 मोड़ घूमने के बाद उसने कमरे का बंद दरवाजा खोल दिया। अंदर जा और बाथरूम से फारिग होकर बराबर वाले कमरे में आ जा। उसने हाथ के इशारे से इस कमरे की निशानदही कर दी जहां मुझे जाना था। वो कोई साफ सुथरी ख्वाबगाह थी। साफ सुथरा और बेशिकन बिस्तर जाहिर कर रहा था कि वो कमरा शायद किसी के इस्तेमाल में नहीं। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ बाथरूम में घुसा और दरवाजा अंदर से बुलेट कर लिया। इस महफूज 4 दीवारी में अपना काम करने से पहले मैंने हर तरफ नजरें दौड़ाई। मुझे डर था कि वहां कोई कैमरा न छुपा हुआ हो। छत और दीवारें सपाट थीं। जब कहीं कोई मुश्तबा चीज नजर नहीं आई तो मैंने इत्मीनान से भीमगन अपने कोट के अंदर की जेब में मुंतकिल कर ली। मैं वहां एक बहाना करके आया था, इसलिए कुछ देर अंदर रुका रहा। पानी बहाया, फ्लश टैंक चलाया और हाथ गीले करके बाहर निकला तो कमरा बदस्तूर खाली था। कमरे के बाहर भी सन्नाटा था। इस वसी और इस मकान में छाई हुई वीरानी मेरी रूह में उतरती जा रही थी। रौनक कंक्रीट और मरमर से नहीं, इंसानों से होती है। मोती महल अचानक मकीनों के कहत से 2-4 हो गया था। दराज कामत जुबान दराज के बताए हुए बंद दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से राजन की गुर्राती हुई आवाज उभरी और मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बहुत देर कर दी तुमने,
वो अपनी सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज करके बोला। आते ही फिर बाथरूम में घुस गए। मजबूरी थी उस्ताद, मैंने क्या कर कहा। कमरे में राजन के साथ वही दराज कामत बैठा हुआ था जो मुझे अंदर लाया था। इसके बकिया 2 आदमी कहीं नजर नहीं आए। राजन ने अपने सामने रखी हुई तपाई से गिलास उठाकर किसी शराब का एक घूंट अपने मेदे में उतारा और मुझे एक अलग कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं सुकड़े सहमे अंदाज में इस कुर्सी पर बैठ गया। राजन का बायां बाजू बदस्तूर सूजा हुआ और हरकत से माजूर था। तुमने डैनी के आदमियों की बातें अपने कानों से सुनी थी? चंद सानियों के रूप फरसाद सकूत के बाद उसने मुझसे पूछा। बिल्कुल उस्ताद, क्या तुमको इस बात पर शुबा है? मैंने दिलेरी से कहा। मैं डैनी के रूप में बातें करके उसे धमका रहा था। वीरान साहिल पर होने वाले तसादुम में मेरे और उसके दरमियान बराह रास्त मुकालमे हुए थे। वो किसी सूरत में अकबर की दी हुई इत्तला पर शुबा नहीं कर सकता था। इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि डैनी ने बैंकॉक में सिर्फ उसी से बात की थी। इसके बयान की तायद करने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं रहा था। मुझे रत्ती बराबर शुबा नहीं है, उसने अपने सोफे में एहतियात से पहलू बदल कर कहा। डैनी इसी शहर में मंडला रहा है। मुश्किल यह है कि दूसरों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तुम बर्नार्ड को जानते हो? नहीं उस्ताद, ये कौन है? मैंने जवाबी सवाल कर डाला। जख्म खाया हुआ एक सांप जो फिर सर उठा रहा है। इसने अपनी दोनों मुठियां भींचकर वसीले लहजा में कहा। इसके खुशामदी उसे आज भी डान कहते हैं। मुझसे गलती ये हुई कि मैं डैनी के चक्कर में पड़कर बर्नार्ड को भूला रहा और इन दोनों ने खामोशी से गठजोड़ कर लिया। अब मुझे इन दोनों को संभालना होगा। बास, तुम इस चूजे को ये सब क्यों बता रहे हो? दराज कामत ने दखल अंदाजी की। इससे इसकी औकात का काम लो और चलता करो। चूजी। राजन इस पर हल्के बल थाड़ा। क्या बकवास कर रहा है तू? खामोश नहीं बैठ सकता? तू चला जा यहां से। इसे मेरी आंखों से देख। ये चूजा नहीं, नेवला है जो सांप का सर चबा सकता है। बस गलती होगी, जोशी ने सर झुकाकर धीरे से कहा। मैं समझ रहा था कि तुमने इसे डैनी के आदमियों की शनाख्त के लिए बुलाया है, इसीलिए बुलाया था। राजन की आवाज एहतदाल पर आ गई। मगर अब हालात बदल गए हैं। थोड़ी देर पहले यह खबर तूने सुनाई थी कि आज बर्नार्ड ने सेलर्स बार में आते ही सबको मुफ्त में शराब पिलाना शुरू कर दी है। किसी को पता हो या ना हो, मैं जानता हूं किस तरह वो अपनी वापसी का जश्न मना रहा है। मोती महल के बकोड़े उसके पास पहुंचे हुए हैं और उसे अपनी वफादारियों का यकीन दिला रहे हैं। जो मेरे नहीं हो सके वो किसी के नहीं हो सकेंगे। प्यार में ये धमकी भी उसी ने फैलाई होगी कि मेरे दोस्त उसके दुश्मन होंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। मैं हैरान था कि ऐसी खबरें कौन फैला रहा है। अब बात साफ हो चुकी है। बास, मुझे ये सब कैसे मालूम हो सकता था? जोशी ने आइजी से कहा। तुमने जब से सेलर्स बार में मुफ्त शराब बंटने की खबर सुनी है तुम्हें चुप लगी हुई है। तुम खामोशी से पिए जा रहे हो। ये आया है तो तुमने जुबान खोली है। बर्नार्ड की साजिश का बर वक्त पता चल गया होता तो व्हाइट हाक डूबती ना आज मोती महल वैरान होता। राजन ने दुख भरी आवाज में जोशी से कहा। हमारे पास आदमी थे, ताकत थी। चंद घंटों में बर्नार्ड को इसके बार समेत फूंक कर रख दिया जाता। वक्त निकल गया, आदमी भाग गए। अब हमें जीतने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। हमें आदमियों की जरूरत है। अकबर भी हमारे साथ काम करेगा। मैं तैयार हूं उस्ताद, मैंने अपना मफरूदा नाम सुनते ही कहा। तुम्हारी और जोशी की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे क्या करना होगा? तुम ये तो समझ गए हो ना कि मेरे 2 दुश्मन हैं, डैनी और बर्नार्ड। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। और वो दोनों तुम्हारे खिलाफ मिल गए हैं। मैंने सारी लाते हुए कहा। डैनी आसेब बना हुआ है, उसे ढूंढना पड़ेगा। बर्नार्ड हमारे सामने है। वो शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक अपने सेलर्स बार में होता है। हम लोग उधर गए तो पहचान लिए जाएंगे। तुम इनके लिए अजनबी हो। जाओ और वहां टाइम बम छोड़कर लौट आओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें 25,000 बात दे सकता हूँ। बोलो क्या कहते हो? मैं जो कुछ सोचकर वहां पहुंचा था वो थरा रह गया। जान की जरा सी बेएहतियाती से सारी कहानी यकसर बदल कर रहेगी। वो इब्तदा से बहुत कामयाबी के साथ अपना नाम छुपाता चला रहा था। सेलर्स बार में मुफ्त शराब का मेला लगाकर उसने सारी कामयाबियों पर पानी फेर दिया था। इस वक्त मेरे सामने राजन की तजवीज से इत्तिफाक करने के सिवा को मुतबादल राह नहीं थी। डान अपने इक़्तिदार से एक मुद्दत से तरसा हुआ था। उसने मोती महल पर एक कामयाब हमला करवाने के बाद ये समझ लिया कि वो पूरी तरह बाजी जीत चुका है। वो जरा से सब्र से काम लेता तो सब कुछ बहुत खुश असलूबी से समेटा जा सकता था। तुम 25,000 बात ना दो तब भी मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। मैंने बिला वजह थूक निकलने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। सारा मसला ये है कि सेलर्स बार का नाम मेरे लिए नया है। पहले मुझे वहां कुछ वक्त गुजार कर मौका महल का जायजा लेना होगा। इन चक्रों में उलझाने की कोशिश मत कर। राजन से पहले जोशी बोल पड़ा। यहां आने के नाम से तेरा पेट खराब हो गया। अब काम सुनकर हीले बहाने कर रहे। राजन ने दानिस्ता खामोशी इख्तियार कर ली। मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ा। ऐसी जगहों पर नया आदमी फौरन निकाहों में आ जाता है। मैं अबे नए आदमी को वहां करना ही क्या है? एक छोटी सी थैली लेकर जाकर बैठकर 1-2 पैग लगा
और वापसी पर थैली बाथरूम में छोड़कर आ जा। काम से डर रहा है तो खुलकर बता दे, हमें ये जायजों वायजों के चक्कर में मत डाल, जोजी ने बेएतनाई से कहा। शक है तो फिर ये काम तुम अपने किसी आदमी से ले लो, मुझे कोई और काम बता दो। मौका मिलते ही मैंने अपने हाथ उठा दिए।